बाइक बैग होता है हमारा साइकिल के आगे, तो उसमें मेरे लड़के ने कैसे एक ड्राइंग लिखा था, गो पापा करके। तो जब ये 90 किलोमीटर्स वो धूप में चला रहा था, एंड एनी टाइम दैट क्लाइंब यूज्ड टू कम, वो देख के थोड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आ रहा था। बट मैं आजू बाजू देखा तो मुझे प्रतापगढ़ दिखा। सो जब मैंने प्रतापगढ़ को देखा तो मुझे लगा कि शिवाजी महाराज ने जो किया है, ही इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। जो उन्होंने किया है हमारे लिए अभी तक, सो ये तो वो ऐसे कर लेते थे, पैदल चले जाते थे, भाग के चले जाते थे, गढ़ चढ़ते थे, कितना कुछ करते थे, और मैं इतना साइकिल नहीं चला सकता। इवन इट गिव्स यू एनर्जी इन योर बिजनेस एज वेल। आई फील मॉर्निंग अगर आपका फिटनेस से है तो वो एनर्जी कंटिन्यू पूरा दिन आपके साथ रहती है। क्या नहीं लेना चाहिए इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ना, कटिंग योर बैड फूड लाइक शुगर, वाइट स्टफ, अ लॉट ऑफ वाइट थिंग्स, मैदा, सो वो पहले अगर फ्राइड वो सब आप आपके डाइट से निकाल दोगे, आधा काम तो उधर ही होगा। प्रोसेस फूड खाना बंद करोगे। और हम क्या है, हमने एस्टिमेट कर लिया कि बारिश है, रोड बाइक नहीं लेके जाएंगे हल्का वाला, तो हम हमारा माउंटेन बाइक जो हम माउंटेन पे चलाना चाहिए, रफ रोड पे चलाना चाहिए, जो हेवी होता है, वो हम सब दोस्त चले गए लेके। तो जब हम घाट चढ़ रहे थे तब तक तो ठीक है, साथ में थे घाट के बेस तक। जब घाट चढ़ रहे थे तो वो 15 kg का बाइक, 200 सेंटीमीटर का बारिश हो रहा है हमारे सर पे, बहुत बारिश हो रहा है। तो घाट के बीच में एक पॉइंट आता है, वहाँ पे मैंने गिव अप कर दिया कि मेरे से और नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है two fitness lovers. The first one, Dr. Aniket. By profession, he is a dentist, a leading smile designer, and an orthodontist. Beyond the clinic, he is an avid cyclist and still walk into his practice with the same energy. And our second speaker is Mr. Sanjay Rao, who helps people achieve financial freedom. A passionate runner and an Ironman who loves trekking as well, and who has completed Everest Base Camp with his son. He is also known as Guruji in Pune's running community. तो आइए सुनते हैं उनकी फिटनेस जर्नी। तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम डॉक्टर अनिकेत एंड संजय टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू किरण। अनिकेत, my first question is for you. 200 kilometer cycling, and that is regularly. What's driving the extreme lifestyle? So basically it started like a fitness regime. It started because I was overweight, but then I always loved cycling since I was a kid, and always saw people cycling in Tour de France, and I always wanted to become something like that. So now I cannot go to Tour de France, but then eventually when I started cycling, I picked it up well, I understood the sport, and I started loving it. So it's purely the love for the sport what drives me every day on the road. And I can see that. Yes, definitely. And Sanjay, for you, 42 kilometers marathon, many times you have done. So what's driving you this extreme lifestyle? I think for most of us it's trying to reduce that what it starts with, right? And we always have some memory as what we used to do. He used to cycle, Aniket. Now I used to run. My dad used to make us run, me and my brother, right? So I had that memory that चलो बचपन में किया है, अभी फिर से कर सकते हैं. So that's how I slowly got into running. Weight went on reducing, but I got hooked on to the sport, right? So I loved running after that. I've been running since 2009 onwards till today. So that's how my journey began. Started with the weight loss, but now it's become more of a passion, more of an it's become less of an obsession, more of a passion now. That's So that's really also- nice. That's really nice. And you have both of you have started from a long, I guess. No, I have started in 2023. You have started 2023. Okay. And I started running since 2009. 2009, right? So I've been regularly running since then. Yeah, that's great. Are you chasing fitness or something deeper? तो जब शुरू होता है सब फिटनेस से शुरू होता है, राइट? एक गोल होता है, फॉर एग्जांपल वेट रिडक्शन वाज अ गोल, फिर वो गोल अचीव हो गया, उसके बाद क्या? बट देन तुम एक स्पोर्ट करते करते उसके अंदर इतने चले जाते हो ना, वो तुमको ड्राइव करता है. Yes. Then it become more of a routine, more of a habit, more of a challenge to do something new, and then you don't want to get off क्योंकि तुमने इतना एफर्ट डाला है. अगर तुमको पता है एक बार उतर जाओगे तो वापस जीरो हो जाएगा वो, राइट? सो दैट इज व्हाट ड्राइव्स यू डीपर देन द पैशन टू कीप गोइंग, टू कीप डूइंग समथिंग डिफरेंट, वैसा लगता है वो. तो वो आप लोगों के लिए एक रेगुलर रूटीन बन चुका है. विदाउट दैट यू कैन नॉट. जैसे खाना खाते हैं वैसे ये भी उठ के करना ही है हमको. यस यस. तो पर्सनल लेवल पे एक पर्सनल इम्प्रूवमेंट जो दिखता है आदमी को,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी सी दैट एवरी टाइम वी आर डूइंग इट. अभी वेट लॉस का जो गोल था वो अचीव हो गया, बट अभी ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, जैसे ब्रीदिंग हो गया है, जैसे साइकिलिंग एंड एनी एक्टिविटी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो वो नहीं करेंगे तो फिर हमको लगेगा कि अरे कुछ तो मिस आउट हो रहा है दिन भर. So it has become a part of our life. And yes, every time we are on the road or we are doing something activity, we are competing with our own self. जो हमने पहले किया है हम खुद से ही compete कर रहे हैं. So we are improving every day in day out. It means you are very deeper in this level. Correct. We are also technically also into it right now. पहले तो काफ़ी बेसिक लेवल पे चालू होता है कि चलो बस करो ये वो. अभी काफ़ी टेक्निकल चले गए हम उसमें because we are loving it. Right. जो हम कर रहे हैं. Right. और इवन इट गिव्स यू एनर्जी इन योर बिजनेस एज वेल. आई फील Definitely. मॉर्निंग 100%. अगर आपका फिटनेस से है तो वो एनर्जी कंटिन्यू पूरा दिन आपके साथ रहती है. Correct. Definitely. Correct. Yes. वो फ्लो होता है, हर एक चीज़ में फ्लो होता है फिर. सो आई रिलेट दिस विथ डेडिकेशन. अगर आप 4:30 बजे उठ के कोई आदमी अपना हॉबी कर रहा है, फिटनेस कर रहा है, तो ही इज़ लेबल्ड एज अ डेडिकेटेड पर्सन. तो जब आदमी डेडिकेटेड है तो वो क्वालिटी जो है उसका, वो उसका हर एक एक्शन में दिखता है. सो वेदर ही इज़ इन हिज प्रोफेशन और हिज पैशन और वट एवर ही इज़ डूइंग ही विल डू इट डेडिकेटेडली. So this passion of our sports has made us more dedicated person as such. Yeah, definitely. Even I feel कि it is more discipline than motivation. 100%. Yes. Aniket, Yes. tell me something about your cycling journey. So my cycling journey started when I was in 5th standard, to be honest. But then schooling, this, that, I went abroad and all that thing happened. And it actually started in 2023, January you can say, when I bought my first cycle from a local store here. Then I started cycling. I found a friend who got me into a group. Then I saw a bigger perspective in cycling. मैंने देखा बहुत सारे लोग काफ़ी सीरियसली साइकिलिंग करते हैं with their good looking kids, good cycles, carbon fiber bikes. वो सब मैंने देखा and I was very fascinated with it. So मैंने डिसाइड किया कि इसमें मुझे मुझे को अच्छा ही लगता था साइकिलिंग, तो मैंने कंटिन्यू किया. और फिर then we started achieving milestones. So we started registering in events. Then I have done a 200 kilometer ride non-stop. I also go on lot of bike packing trips. That is हम घर से चालू करते हैं, हम पूरा कोंकण घूम के वापस पुणे आ गए in 3 to 4 days. Recently I did this from Mangalore to Goa. We did it in 3 days. And everything was on our cycle. हमने support vehicle नहीं लिया, हमने किसी का help नहीं लिया, कहीं होटल बुक नहीं किया, कहीं खाने का डिसीजन नहीं है. जस्ट साइकिल निकालो, बैग भरो, जहाँ मन करे रुक जाओ, स्टे रॉ, स्टे एक्सट्रीम. दैट वाज द थिंग. सो नाउ इट इज़ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट साइकिलिंग एंड इट गिव्स मी दैट हैप्पीनेस क्वेश्चन अभी. सो जर्नी तो यही है. वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ रेसेस. अभी पाटस बारामती रोड पे एक रेस होता है, वो अभी मैंने जस्ट पार्टिसिपेट किया उसमें. सो जर्नी वाइज येस, 2023 to 2026, I will say that I have come a long way. Within 3 years only. Yeah, definitely. And you have started very late. It's not कि मैं regular कर रहा हूँ. 23 से start किया and you have achieved a lot. Yes, because I went into that sport so deep that right now I can actually challenge anyone who is telling something to me about cycling knowledge or about the technicalities between it. We are so well versed. All the friends who I roam around with, who I ride with, सब इतना technically sound है, इतना knowledgeable है that there is no one who will tell us what to do now. We know everything. So you have deep experience about cycling. Yes, now. yes. Very interesting, Aniket. What about Sanjay? How is your fitness journey? So it started with running. 2009 में बोला ना weight loss के चालू हुआ था. So running went on for a few years. Then कुछ अलग करना है करके started cycling. उसमें भी मैंने 1-2 BRM करके होता है, like 200-300 किलोमीटर साइकिल राइड वो किए. Then कुछ अलग करने के लिए था, तो then ट्रायथलॉन करना शुरू किया. ट्रायथलॉन इज स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. तो वो छोटे से किया, ओलंपिक डिस्टेंस होता है. उसके बाद धीरे धीरे हाफ करने के, अभी काइंड ऑफ अभी 2 फुल कर चुका हूँ मैं आयरनमैन. I'll tell you details about that cat. So Ironman is basically 3.8 kilometers of swimming, 180 kilometers of cycling, and a full marathon. That's 42 kilometers, 42.2 to be precise, right? तो over time क्या होता है ना, you want to try something else, कुछ नया. अभी focus है swimming में. अभी हम लोग स्विमाथॉन वगैरह करने जाते हैं, मतलब 6 kilometer swimming, 10 kilometer swimming. So it's something different, something where you are challenging yourself.
तो कुछ नया करना है करके, क्या नया करना है, तो इट्स पागलपन बोल सकते हो, बट इट काइंड ऑफ कीप्स, एक गोल रहता है ना, कुछ करना है करके. तो दैट्स हाउ माय जर्नी हैज बीन स्टार्टिंग. आई डू अ लॉट ऑफ ट्रेक्स ऑल्सो. ट्रेक स्टार्ट हुआ था बिकॉज आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माय सन टू नेचर. आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, सब मोबाइल में ही है, बट इफ यू आर सो दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट एंड फ्री वे. ट्रैकिंग के लिए लेके जाओ, लाइक वी हैव डन सिंहगढ़ ट्रैक्स अ लॉट. सो सिंस ही वाज 9 years old आई बीन टेकिंग हिम फॉर ट्रैकिंग. तो हमने अन्नपूर्णा बेस कैंप चालू किए थे, फिर एवरेस्ट बेस कैंप अगला उसके 2 साल बाद, गोईचाला, केदारकंठा. वी हैव डन सो मेनी ट्रैक्स टुगेदर एंड इट्स अ स्पेशल बॉन्ड देन ऑल्सो, राइट. तो अब जब वो 40-50 साल का होगा तब उसको ध्यान आएगा. अगर वो करियर में घुस के मोटा हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, नहीं होना चाहिए, बट एक दिमाग में रहेगा ना कि बचपन में ये सब कर चुका हूँ तो कर सकता हूँ. वो आज के तारीख में हाफ मैराथन भी भाग चुका है. बहुत सही. सो ही इज, एंड व्हेन ही वाज 10 years old, ऑलमोस्ट एवरी मंथ दैट ईयर, ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक 10 किलोमीटर भागा है वो. जब वो 15 साल का था, सॉरी 15 साल का था तब, तो उतना उसको मतलब ध्यान रहेगा. सो दैट्स व्हाई आई लव ट्रेकिंग. It's very easy, kids enjoy doing that. So that my journey has been changing throughout the years. और आई कैन रिलेट कि आपका बॉन्डिंग भी कितना अच्छा हुआ होगा बिकॉज ऑफ बहुत फर्क गिरता है, बहुत ऑल फर्क टुगेदर. गिरता है. क्योंकि फोन अभी नहीं चलता है वहाँ पर, है ना, उससे अच्छा और क्या चाहिए. मोबाइल, अदरवाइज सब अभी तो मोबाइल बच्चे पकड़ के देखना ही बैठते नहीं चाहते हैं, ऐसे हो जाता है. राइट. बॉन्डिंग के बारे में आई वुड अग्री विथ हिम, क्योंकि जब हम बाइक ट्रिप्स पे जाते हैं तभी जो हम 5 लोग का बॉन्डिंग है ना, वो मेरे अभी बाकी दोस्तों के साथ नहीं है. साथ में रहना, साथ में पार्टी करना, साथ में साइकिल चलाना इतनी धूप में, एनी हार्श कंडीशन, एक दूसरे का हेल्प करना टेक्निकली, इट इज़ वेरी सेल्फलेस बॉन्ड. कोई फ़ायदा नहीं है इसमें किसी का भी. इट इज़ जस्ट प्योर बॉन्डिंग. यस, जस्ट सपोर्ट ऑफ ईच अदर. वेरी ट्रू. ड्यूरिंग दिस फिटनेस जर्नी आप लोग को काफ़ी टफेस्ट मोमेंट भी आए होंगे, तो आप कुछ एग्जांपल देना चाहोगे कि कहाँ वो आपको याद भी होगा, तो ऐसा कुछ आप. सो टफेस्ट मोमेंट एक है, लाइक डिटर्मिनेशन कैसे काम करता है एंड हाउ योर इंस्पिरेशन वर्क फॉर यू, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास. सो एक राइड को रजिस्टर किया था हमने. वो था पुणे से महाबलेश्वर. मानसून में राइड होता है, पूरा बारिश में. वो मुळशी वारजे से स्टार्ट होगा, मुळशी, मानगांव, मुंबई गोवा हाईवे, पोलादपुर, अंबेनळी घाट चढ़ के महाबलेश्वर जाता है. तो अंबेनळी घाट जो है वो 38 किलोमीटर्स का महाराष्ट्र का सबसे लंबा घाट है. सो वो घाट में, और हम क्या है, हमने एस्टिमेट कर लिया कि बारिश है, रोड बाइक नहीं लेके जाएंगे, हल्का वाला. सो हम हमारा माउंटेन बाइक जो हम माउंटेन पे चलाना चाहिए, रफ रोड पे चलाना चाहिए, जो हैवी होता है, वो हम सब दोस्त चले गए लेके. सो जब हम घाट चढ़ रहे थे तब तक तो ठीक है, साथ में थे घाट के बेस तक. जब घाट चढ़ रहे थे तो वो 15 kg का बाइक, 200 mm का, 200 सेंटीमीटर का बारिश हो रहा है हमारे सर पे, बहुत बारिश हो रहा था. सो घाट के बीच में एक पॉइंट आता है, वहाँ पे मैंने गिव अप कर दिया कि मेरे से और नहीं होगा, आई एम डन, दिस इज़ द पीक ऑफ माई फिटनेस, मैं और आगे नहीं जा सकता. बट उस टाइम पे मैं रुका, मैं वेट कर रहा था कि कोई सपोर्ट व्हीकल आए और मेरे को गाड़ी से लेके जाए. बट मैं से आजू बाजू देखा तो मुझे प्रतापगढ़ दिखा. सो जब मैंने प्रतापगढ़ को देखा तो मुझे लगा कि शिवाजी महाराज ने जो किया है, और ही इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, जो उन्होंने किया है हमारे लिए अभी तक. सो ये तो वो ऐसे कर लेते थे, पैदल चले जाते थे, भाग के चले जाते थे, गढ़ चढ़ते थे, कितना कुछ करते थे, और मैं इतना साइकिल नहीं चला सकता. सो दैट गेव मी एन इंस्पिरेशन एंड ऑल द एनर्जी बूस्ट. कहाँ से आया, कैसे आया, आई हैव नो आइडिया. बट मैंने देखा, मैंने नाम लिया जय शिवाजी, और मैं महाबलेश्वर पहुंच गया विथ फुल पावर. Wow, very interesting. That was the Aniket. toughest point where I cracked, but then I got inspiration from Maharaj and then I completed it. So this is a very memorable moment for me. Wow. हमेशा सभी- याद रहेगा मुझे ये. Exactly. शिवाजी महाराज तो सबके लिए इंस्पिरेशन है. और along with that, do you have inspiration from your family as well? Oh, definitely. So in my family, my own uncle, whose name is Ashish Kasudekar, he is a superhuman basically. तो वो बंदा, even I'm sure Sanjay also knows Yeah. him very well. So he is not a human. सुपरह्यूमन है, इनह्यूमन है बोल सकते. इनह्यूमन. सो व्हाट अ ह्यूमन बॉडी कैन डू, वो परफेक्ट एग्जांपल है कि वो लिमिटलेस है. वो 555 किलोमीटर्स लद्दाख के सारे पासेस, अकेले इंडियन टू पार्टिसिपेट, अकेले इंडियन टू कंप्लीट ऑल द पासेस. सो दैट इवेंट इज नोन एज द ला अल्ट्रा. द ला अल्ट्रा इज 555 किलोमीटर्स रनिंग इन लद्दाख. Running, रनिंग, cycling, not cycling. Cycling is a runner. Runner, okay. So
डिटर्मिनेशन जो है ना कि क्या होना चाहिए, क्या फोकस होता है एक आदमी का. सो ही इज़ अ रनर, सो ही इज़ अ अल्ट्रा रनर. तो मेरे फैमिली में इतना बड़े लेवल पे कुछ कर रहा है तो आई वॉट एवर आई डू वो मेरे लिए छोटा ही होता है. अच्छा, इसीलिए सो आई एम ऑलवेज देयर टू अचीव समथिंग बिगर. हमेशा मुझे कुछ बड़ा करना है क्योंकि ऑलरेडी कुछ तो बड़ा दिखता है मुझे वो करना है. उन्होंने इतना किया है तो सो पर्सनल गोल्स हमेशा ही खुद के लेवल के अप मार्केट ही देखता हूँ हमेशा ही. व्हाट आई हैव डन इज ऑलवेज मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या किया है, हो गया अभी नेक्स्ट क्या है. यस यस यस. सो इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स इन पुणे. वॉट एवर इट इज, साइकिलिंग, रनिंग, जो भी हो, एथलेटिज्म इज आशीष, एवरीबडी नोज हिम एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी. दैट्स नाइस. मुझे मिलना चाहिए आशीष सर से. यस. और डेफिनेटली शिवाजी महाराज तो रियली हमने कितना भी उनसे सीखा तो कम है. इतनी चीज़ें उन्होंने की है, वो तो है अनकाउंटेबल. संजय, आपके लिए टफेस्ट मोमेंट कौन से रहे हैं? सो टफेस्ट नहीं बोल सकता, टफेस्ट ये एक तो गोवा हाफ आयरनमैन किया था 2019 में, राइट. दैट वाज द फर्स्ट हाफ इवेंट किया हुआ था मैंने. तो साइकिल बाइक बैग होता है हमारा साइकिल के आगे, तो उसमें मेरे लड़के ने कैसे एक ड्राइंग लिखा था गो पापा करके. तो जब ये 90 किलोमीटर्स वो धूप में चला रहा था एंड एनी टाइम दैट क्लाइंब यूज्ड टू कम, वो देख के थोड़ा इंस्पिरेशन मोटिवेशन आ रहा था. और वो जब हेल्प हुआ ना, जब मैं रन कर रहा था तभी वो धूप में, इट वॉज लाइक चलो कुछ करना है दैट बिकॉज पीपल आर वेटिंग एट द एंड ऑफ द फिनिश लाइन टू ग्रीट यू. सो विवेक मतलब इट हेल्प मी गेट थ्रू दैट. दूसरा था एक 300 किलोमीटर साइकिल राइड था एंड इट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू राइड्स जो मैंने कर रहा था. तो उतना ट्रेनिंग कुछ था नहीं तब. हम पहले पूना टू महाबलेश्वर एंड बैक वैसा वाला रूट था. वो पहले खंबाट की घाट आया, वो तो निकल गया, बोला वेरी गुड, ठीक है ये टफ लग रहा है बट हो गया. उसके बाद और एक घाट आया पसरनी करके, उसमें आंखों से आंसू निकाल दिया उसने, बोला ये क्यों कर रहा हूँ. अगर उस वक्त कोई गाड़ी आ जाता था मैं घुस के निकल जाता था. बट ये सब इवेंट्स का खासियत या जो भी बोलो है कि द एफर्ट टू गिव अप एंड गो बैक इज जस्ट एज मच देन फिनिशिंग इट. अभी मेरे पास चॉइस था कि मैं रुकूं, ट्रक के अंदर घुसूं, जाऊं, उससे अच्छा कि खत्म करना है. और वो खत्म करने के बाद जो ये मिलता है ना सक्सेस का, जो मतलब वो खुशी that वो सेटिस्फैक्शन जो है, इवन आई रियलाइज. बट वो आज तक मुझे याद है. तो उसके बाद एक ध्यान रखा था कि करना है तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके करना चाहिए. राइट. हाँ, तो ट्रेनिंग जरूरी है बट वॉट एवर यू आर डूइंग कंप्लीट इट. मतलब अगेन यू हैव टू टेक अ बैलेंस कॉल, राइट. लोग क्योंकि योर हेल्थ ऑल्सो मैटर्स. एक आई हैव क्विट ऑल्सो रेसेस, सो फेलियर ऑल्सो टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मोर देन सक्सेस फेलियर तुमको सिखाता है. सक्सेस क्या था, सर में थोड़ा हवा आता है तुम्हारा, बट फेलियर विल हम्बल्स यू, सेइंग दैट के नहीं तुमको और ट्रेनिंग का जरूरत था, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस और यू नीड टू बेटर योरसेल्फ. सो फेलियर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई वुड सजेस्ट. और मेरे पास बीच बीच में हो चुका है ऐसे एक दो बार कि व्हेन आई नो दैट आई was not there and I made myself better and completed it. Exactly. Sometimes आप लोगों को गिव अप करना पड़ता है टू कम इन more stronger, right. more stronger. Yes. So you have to take 4 steps back to jump farther. It is like that. And always health is first priority, right? ऐसा नहीं है कि तुमको हर चीज़ खत्म ही करना है करके. अब मेरा घर में तो उल्टा हो गया, जब मैं कभी क्विट करता हूँ कुछ लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब वी डिड नॉट पुश. हाँ, मेरे इधर भी ऐसा ही है. पुश करके खत्म नहीं किया करके, चलो आ गया वापस एक पीस में. आज नहीं गया साइकिलिंग को, चलो फिर चलो ब्रेकफास्ट करने जाएंगे. फैमिली को भी तो टाइम देना रहता है. हाँ, तो एक अलग थॉट प्रोसेस भी हो गया उधर. तो उनके लिए भी सेक्रीफाइसेस होगा. व्हाट डू यू थिंक फॉर फैमिली? मेरे साथ तो उनका सेक्रीफाइस ज़्यादा है. हाँ 100%. बट वी आर वेरी थैंकफुल कि उनका सपोर्ट है हमको. और वो उनको मालूम है कि अगर इनको नहीं भेजेंगे सुबह, इनको रुका के रखेंगे तो ये दिन खराब कर देंगे. सो इट्स बेटर कि इनको जाने दो. दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी. हाँ, so it takes time but then they get adjusted. It took time, definitely. Right. Initially होता है कहाँ जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, फिर इनको लगता है कि चलो ठीक है परफेक्ट अपना मी टाइम हो गया है. आने के बाद तो फिर जो एनर्जी वो हमको देंगे, टाइम देंगे. See that's again another thing. Now you have taken so much time, तुमको देना भी पड़ता है ना उस हिसाब से. और हमको जानता है once your passion is so much, you know, कि चलो ये करने दिया ना, अभी तुमको जो चाहिए वो करो. Exactly. कि आपको जो करना है वो अगर आपको करने दिया ना, तो आप हमारी भी इच्छा पूरी विद इंटरेस्ट फैमिली. कभी ऐसे रेस को हम जाते हैं. तो लास्ट टाइम एक बार मैंने रेस पार्टिसिपेट किया था तो आई डिड नॉट कंप्लीट. मेरे को क्रैम्प आ गए थे बहुत बुरे वाले.
वही पार्टिस वाला रेस जो लास्ट अच्छा, ईयर गया था तो नहीं कर पाया मैं, बट इस साल माय वाइफ हैड टोल्ड मी दैट व्हाटएवर हैपेंस यू हैव टू कंप्लीट इट। वो मेरे को ऐसे बोल के भेजी थी घर से, सो देन दैट वाज देयर इन माय माइंड, सो आई विल थैंक द कंप्लीशन फॉर दिस ईयर फॉर her only. यस Yes, इट्स हर क्रेडिट कि वो मुझे याद था। क्रैम्प इस बार भी आए बट आई वाज लाइक नहीं, उसने बोला है कंप्लीट करो, आई वाज मोटिवेटेड टू डू इट, तो आई कंप्लीटेड इट। एग्जैक्टली, यानी कोई ना कोई तो एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन आपके दिमाग में रहता है व्हाइल यू डू ऑल दिस थिंग्स। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, कुछ तो चाहिए होता है। एक पॉजिटिव ऑलवेज सेल्फ ऑलवेज टॉक। ऑलवेज। करेक्ट। अनिकेत, आपने सह्याद्री क्लासिक भी किया है जहाँ तक मुझे पता है, आप हमारे ऑडियंस को कुछ बता पाओगे कि सह्याद्री क्लासिक क्या है? यस डेफिनेटली। सो सह्याद्री क्लासिक इज़ बेसिकली एन इवेंट जो सह्याद्रीज में होता है। सो सह्याद्री का बेस्ट ऑफ द घाट्स और बेस्ट ऑफ द माउंटेन्स है हमारे महाबलेश्वर और सातारा के रीजन में। सो वहाँ पे यूजुअली 5 से 6 घाट है, तो उसमें से 4 घाट चूज़ होते हैं कंपटीशन के लिए। सो उसमें कैटेगरीज है, सो सिंगल घाट, 2 घाट्स, 3 घाट्स एंड 4 घाट्स ऐसे। सो डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल आपको रजिस्टर करना होता है उसमें। अगर आप बहुत फिट हो, वेरी फास्ट, रेगुलर इन साइकिलिंग, यू कैन डू 4 घाट्स। इफ़ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि 4 घाट मतलब नहीं हो सकता, तो 2 घाट कर सकते हो या सिंगल भी कर सकते हो फॉर अ ट्रायल। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बट द मोस्ट सीनिक एंड मोस्ट सेल्फ satisfying event happening in our country. People from outside India are coming. This time we had a rider from Italy who came down. So it is one of the best, and our Pune have a lot of people who sponsor the event also. So it's one of the best events what the country has for normal cyclists. बाकी races and all तो वो pro level पे होता है, वो हमको allowed नहीं है। Like पुणे ग्रैंड टूर जो हुआ अभी, अभी मैराथन भी है आई गेस। no that's a पुणे ग्रैंड टूर जो अभी जैन में हुआ था ना, तो वो सबके लिए नहीं है ना, दैट इज जस्ट टू वॉच, वो सबके लिए पार्टिसिपेशन नहीं है। बट ऐसे इवेंट्स में आपको लगता है कि यस यू आर एट अ लेवल और आपने ये अचीव किया है, तो वो अचीवमेंट के लिए यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन सह्याद्री क्लासिक। वाह, इंटरेस्टिंग। संजय, आप कुछ आयरन मैन से रिलेटेड कुछ बोल पाओगे, यानी क्या है आयरन मैन? सो आयरन मैन आपको बताया था वो क्या है, बट उसका ट्रेनिंग कम से कम एक बेस आपका फॉर्म हो जाता है, उसके बाद 6 महीने का ट्रेनिंग लगता है डेडिकेटेडली टुवर्ड्स दैट, राइट। सो यहाँ पे आप जब सैक्रिफाइस के बारे में बात करते हैं ना, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑल योर वीकेंड्स आर आउट। वो 6 महीने के लिए तुम्हारा घूमना मतलब जितना हो सकता है उतना, बिकॉज इट्स लाइक अ स्टेप, धीरे 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 बढ़ते ही जाता है। सो देन यू हैव टू डेडिकेट एटलीस्ट 6 to 8 months टू दिस इवेंट। सो दैट इज मोर, मतलब तुम्हारे दिमाग में दैट इज द बेंचमार्क कि ये तो करना ही है तुमको, बाकी सब काम वाम सब ठीक है। तो सबसे चैलेंजिंग इज टाइम कमिटमेंट। इसमें कंसिस्टेंसी तो आ जाता है, बट वही कंसिस्टेंटली 6 महीने के लिए ये करना, दैट इज द बिगेस्ट। तो मैंने 22 में किया था, फिर ब्रेक लिया, फिर 25 में किया था, जस्ट टू मेक श्योर। कौन से आयरन मैन आपने किया? 22 में टैलिन एस्टोनिया करके वहाँ पर किया था, दैट वाज माय फर्स्ट आयरन मैन। फिर बोला चलो अभी एक और करते, जस्ट टू पुश माई सेल्फ, एंड वो एक ट्रेनिंग का मोड आ जाता है फिर, राइट। सो अभी लास्ट ईयर 25 में बार्सिलोना का किया था। तो 6 महीना तो जाता ही है तुम्हारा, बट इट काइंड ऑफ गिव्स यू अनदर किक कि तुम स्विमिंग भी कर रहे हो, साइकिलिंग भी कर रहे हो, एंड एवरी ईयर आई हैव टेकन समबडी एल्स विद मी। तो उनका भी हो गया है। तो फर्स्ट ईयर तो एक दोस्त के साथ किया था, सेकेंड ईयर किसी को फिर फोर्स करके उसको लेके गया था, देन उसका भी हो गया, मतलब उसको करना ही था, बट यू नीड सम कंपनी टू डू दिस एंड पुश, राइट। सो एंड इट मोटिवेट्स अदर ऑल्सो। मेरे को तो देख के लोग बोलते हैं अरे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो every year you get new people, you advise people on how to train for it, so it kind of spreads that culture, right? Our goal is to spread the culture. तो स्विमिंग का भी वही हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे और लोगों को पता चलता है कि अरे ये कर सकते हैं, अरे ये कर सकते हैं, so it kind of spreads that way. So friends, Ironman is like cycling, swimming and running all together In a certain amount of time. in a certain. So it can be around 15 to 17 hours. So the whole goal is how you are able to, your body is able to sustain for that long. Yes. आपका endurance, आपका nutrition, body को कैसे खड़े रखना है तब तक। और आयरन मैन ये ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं। मैंने नहीं, तो नहीं, मेरी women तो फ्रेंड है बहुत जो लोग करते फीमेल, हैं। हाँ फीमेल लोग भी करते हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। हाँ, तो इट्स ओपन काइंड ऑफ अ थिंग। और ये अलग जगह के हिसाब से अलग, कभी सी में होगा स्विमिंग, तो यू कॉन्कर योर फियर्स। हमारे पास ऐसे लोग आए जो कभी स्विमिंग नहीं किए थे, उन्होंने किया हुआ, जो सिर्फ पूल में स्विमिंग करते थे। सी तो बहुत लंबी दूर की बात है। तो
it's like one fear at a time, conquering one fear at a time बोल सकते हैं। इनके प्रैक्टिस के टाइम पे मैं भी जाता था इनके साथ हाँ ना, साइकिलिंग देखने में भी कितना अच्छा लगता होगा कि ये और पीडी इनका एक दोस्त है जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स में है, मेरे अंकल के जो मैंने बताया उनका कॉमन फ्रेंड है, सो मेरे को भी जानते हैं, सो वी यूज्ड टू गो साइकिलिंग, ऐसे ट्रेनिंग था इनका तो चलो मैं भी आता हूँ ऐसे। तो इसी में काफी लोगों का ट्रेनिंग भी हो जाता है, जरूरी नहीं वो इवेंट में पार्टिसिपेट करे, बट एक ग्रुप जैसा हो जाता है। हर हफ्ता तुम निकलते हो, 4-5 घंटा रास्ते पे साइकिलिंग करते हो, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ किक यू गेट आउट ऑफ इट। इट इज एक्चुअली अ स्ट्रेस बस्टर फॉर अस। सारे दिन का स्ट्रेस हो या लास्ट डे का कुछ स्ट्रेस हो, वो पूरा निकल जाता है कंप्लीटली। टोटली एग्री विद यू। तो ये सब करने का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाता है, एंड वो हर एक चीज में परकुलेट होता है। जो तुमको इधर आज तुमने 50 किया, फिर 75 किलोमीटर साइकिलिंग किया, फिर 100 किया, 150 किया, राइट? सो काम में भी तुमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जा सकते हैं। हमारा प्रोफेशन में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सैचुरेशन पॉइंट जो आता है ना लाइफ में, आपको सबको ना एक बहुत सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है। वो एंड्योरेंस एथलीट, अगर एंड्योरेंस एक्टिविटी है आपका, तो वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है, बिकॉज यू आर मेंटली सो स्ट्रांग कि आपको आना है। अभी गए हो 100 किलोमीटर चले गए दूर, वापस भी आना है ना? सो दैट बाउंस बैक इज वेरी इजी मेंटली ऑल्सो। अनिकेत, संजय, आप दोनों फिटनेस से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें करते रहते हो, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज टाइम? हाउ डू यू गेट टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स? सो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आइडियली वी डू दिस फर्स्ट थिंग इन द डे। ये हमारा जो होता है ना 8-9 बजे तक खत्म हो जाता है। तो वी गेट अप एट अराउंड 4:30 और सो, बाय 5:30 5:45 वी आर आउट, वी आर बैक बाय 7:30 8 मैक्सिमम। अगर लॉन्ग राइड्स, सैटरडे लॉन्ग राइड्स रहेगा तो 9 साढ़े 9 10 बजे तक आ जाते हैं हम लोग। बट देन आवर डे स्टार्ट्स, तो सो देयर इज नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। एक ही होता है कि एक दिन पहले जल्दी सोना पड़ता है, जल्दी सो जाते हैं हम लोग, और कुछ गंदी हरकतें नहीं करते, मतलब खाना पीना वगैरह, है ना? यू हैव टू मेंटेन दैट, वरना वो रनिंग में तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा आपको, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आपने कुछ गड़बड़ किया था, कुछ ज़्यादा मिठाई खा लिया, ये क्या। सो दैट इज इमीडिएट, सो दैट कीप्स अस मोटिवेट। आपको पता ही है कि कल सुबह जल्दी उठना है, राइट? देन योर डिसिप्लिन विल टेक यू थ्रू दैट। Yes, Aniket, what do you think about that? So basically, a person always makes time for what he loves doing. पहली बात तो वो है. Another thing is what Sanjay said precisely कि हम ये सुबह में करते हैं. अभी जो लोग नहीं करते हैं एक्टिविटी सुबह, तो वो क्या करते हैं 8-9 बजे तक, तो दे विल स्लीप. तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाले. सो वो जो सबका स्लीप टाइम है, वो स्लीप टाइम में हम हमारा पैशन अचीव कर रहे हैं, है ना? जो अगर नहीं जा रहे तो सोएंगे, है ना? और या घर पे कुछ करते हैं, बट वी फाइंड आवर टाइम इन दैट पार्ट ओनली. अगर वो नहीं मिला ना हमको, तो हम दिन भर टाइम नहीं है हमारे पास. ओके, एंड देन वी विल हैव दैट फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट द होल डे. वो मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए. सो वी वेक अप एट 4:30, वी स्लीप एट 10. हम एज ही सेड कि हम 8:30-9 बजे तक ख़त्म ही कर देते हैं सब एक्टिविटी. लॉन्ग राइड्स 10-11, फिर फुल डे राइडिंग के लिए अगर करना है कि नहीं बाबा अभी काम से हमको हो गया, हमको वेकेशन चाहिए, तो वेकेशन विल भी चलो, टूर चलो, तो दिन भर साइकिल चलाओ, 200-300 किलोमीटर चलाओ, आराम से चलाओ. दैट इज आवर डे आउट. सो वैकेशन में भी साइकिलिंग? हाँ, बॉयज वेकेशन, फैमिली वेकेशन नहीं, पैशन रिलेटेड वेकेशन बोल रहा हूँ मैं. बाकी तो फैमिली के साथ तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना? सो सुबह के टाइम पे सब खत्म हो जाता है. वी आर रिचार्ज्ड, फ्यूल अप, एड्रेनलिन हाई है, दिन भर का एनर्जी पूरा रेस्टोर्ड है. से आपके बिजनेस में भी आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है. सो इट्स लाइक यू हैव सेट अ गोल कि हमको कल सुबह जाना ही है, देन ओनली एट नाइट स्टार्ट प्रिपेयरिंग. यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग डेफिनेटली अलॉन्ग विथ योर फूड हैबिट. जो भी है, आप न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या लेते हो वो भी डिपेंड करता है, वो भी मैटर करता है. एंड देन मॉर्निंग का आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे 4 o'clock उठना है. अदरवाइज जब हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं अचीव करने के लिए, तो हम क्यों उठेंगे ना? एग्जैक्टली. यस. और हम कंट्रोल कर लेते हैं रात को उल्टा सीधा खाना या ऐसे लेट खाना, और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हम थोड़ा अवॉइड करते हैं. बिकॉज बाकी जो लोग हमारे साथ आएंगे सुबह, उनके साथ अगर जाना है, उनके साथ कीप अप करना है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस दिस सो दैट टुमारो मॉर्निंग यू परफॉर्म गुड. सो वो भी प्रायोरिटी का चीज़ है. किसी का प्रायोरिटी नाइट टाइम फन है, किसी का है कि हमको सुबह परफॉर्म करना है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रायोरिटी. सबके लिए अपना प्रायोरिटीज़ अलग अलग है. बट
अपने हेल्थ के लिए तो प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग देते हो. That's really nice. Along with your daily routine, what do you think, does nutrition play important role? Definitely. Yes. Nutrition is the key to your stable fitness always. न्यूट्रिशन ही आपका 70 to 80% ये करेगा. ऐसे हम नहीं बोल रहे कि हम टॉप नॉच न्यूट्रिशन करते हैं, ऐसा नहीं है. एंड्योरेंस एथलीट ईट्स एवरीथिंग, ये हमेशा याद रखो. हमको देख के भी लगता होगा, हम सब मेरे को देख के तो लगता ही रहेगा. मेरे को भी, हम भी सब खाते हैं, हम सब खाते हैं. बस द टाइम यू ईट एंड हाउ मच यू ईट, एंड दैट मैटर्स. और कैलोरी खा रहे हो तो बर्न करो, दैट्स द सिंपल थिंग फॉर अ जनरल लाइफ. हाँ, अभी आपको वो कुछ बॉडी अचीव करना है और मसल बिल्ड करना है, देन देयर इज अ डिफरेंट डाइट. बट रेगुलर न्यूट्रिशन, गुड होम फूड. फिर भी अगर एक गाइडेंस आप क्या लेते हो? क्या नहीं लेना चाहिए इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ना, कटिंग योर बैड फूड लाइक शुगर, वाइट स्टफ, अ लॉट ऑफ वाइट थिंग्स, मैदा. सो वो पहले अगर फ्राइड वो सब आप आपके डाइट से निकाल दोगे, आधा काम तो उधर ही हो गया. प्रोसेस फूड खाना बंद करोगे, देन आइडियली एनीथिंग होममेड इज गुड. ऑफ कोर्स इफ यू डोंट यूज टू मच ऑयल एंड ऑल दैट, राइट, वो सब स्टैंडर्ड तो है ही. तो मेजोरिटी इज कटिंग ऑन योर बैड फूड. अभी आजकल ऐसा हो गया, सब कुछ सब कॉल करोगे स्विगी आ जाता है, जोमेटो आ जाता है, राइट. दैट कंट्रोल इज नॉट देयर. वर्स्ट सिचुएशन आ रही है अभी तो, यानी बाहर से ही लोग बुलाना प्रेफर कर रहे हैं बहुत सा. हाँ, तो मेजोरिटी तो वही है. बाहर का खाना बंद कर दोगे तो उधर ही तुम्हारा आधा लाइफ सॉर्ट हो जाता है. बट अगेन आई टेल पीपल 70% इज न्यूट्रिशन एंड देन एक्सरसाइज. और न्यूट्रिशन सिर्फ ऐसे, हाँ, वो तो है. बट न्यूट्रिशन का कैसे, न्यूट्रिशन सिर्फ आपका घर का खाना है, बाहर का खाने से नहीं है. आप अभी हमारा जो एक्टिविटी है वो लॉन्ग आवर्स एक्टिविटी है, तो लॉन्ग आवर्स में आप क्या खाते हो वो इम्पोर्टेंट है. तो हमको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है ऑन राइड. कार्ब्स होना चाहिए, उतना इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए. तो क्रैम्प्स नहीं आने के लिए वी ईट लॉट ऑफ सोडियम, सॉल्ट, वो सब इन वर्कआउट खाते हैं हम. प्लस यू नीड, बिकॉज इतना मसल का यूज़ हो रहा है, इतना आपका कार्डियो एक्टिविटी हो रहा है, सो प्रोटीन इज़ अ मस्ट. आप वेजिटेरियन हो तो वे प्रोटीन ले लो, इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वे प्रोटीन ले ही सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मल एक्टिविटी के लिए वे प्रोटीन लेना चाहिए, कुछ ऐसे देयर इज नो बैन फॉर इट. अभी ये आयरन मैन जैसा होता है, राइट. यू हैव टू बी ऑन द रोड 16 to 18 hours, 17 hours, राइट. एवरी आवर यू हैव टू न्यूट्रिशन योर बॉडी. तो 60 to 80 grams तुमको कार्बोहाइड्रेट्स लगता है पड़ेगा. मतलब कितना होता है, मानो आपको अगर कितना है, 2-3 केले में कितना आता है? 1 केले में 6 ग्राम कार्ब. 6 ग्राम आता है. तो इमेजिन एक्चुअली अगर इफ यू वांट टू फिगर आउट कितना लगता है, 1 घंटे में 10 केले खाने पड़ेंगे. बट उसके अलावा देन यू हैव अदर थिंग्स दैट यू यूज. आप 10 केले तो नहीं खा सकते ना. खा सकते ना. तो ये प्लानिंग जब आप रेस कर रहे हो, हर घंटे में आपको, हर 15 मिनट में आपको ध्यान रखना है कि अभी ये लेना है, अभी ये लेना है, अभी ये लेना है. सो इट इज नॉट दैट यू आर जस्ट साइकिलिंग, यू आर जस्ट स्विमिंग और जस्ट रनिंग. एवरी आवर क्लॉकवर्क के माफिक 15 मिनट में क्या लेना है. भूख लगने के बाद नहीं खाना है, भूख लगने से पहले, प्यास लगने से पहले पीना है, राइट. सो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द इवेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल. के हाउ डू यू डू दैट ऑफ इट. देन तो आपका दिन में आप क्या खाते हो, कैसे आपका बॉडी रिकवर होता है, वो सब बहुत बहुत मायने रखता है. राइट, नाइस इन्फॉर्मेशन. यानी ये तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम तो जब प्यास लगेंगे तभी पानी पिएंगे. और इसका और एक ऐसा है कि आप 10 किलो तो नहीं खा सकते एवरी 1 घंटा ना. दिन में कितना केला खाओगे? 16 घंटे में कितना है? 16 into 10, 160 केला तो नहीं खा सकते दिन भर में, है ना. सो देर आर सप्लीमेंट्स. व्हाट वी टेक इज कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स लाइक जेल्स, कार्ब वाटर, आइसोटोनिक चार्ज पाउडर्स, वो सब सप्लीमेंट्स होते हैं विच आर एब्सोल्युटली परफेक्ट इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑन द रोड. But you need to be performed, then only you. हाँ, कार्ब खाओगे तो कार्ब उड़ाना है. Doing these kind of events means you are on the road for 15-16 hours, right? So it's like a fuel. आप फ्यूल भरोगे तभी आपका इंजन चलेगा. It's like that. So we are fueling ourselves so that we can be on the go always. It's a fuel basically. Even 6 months before आपको ये सब चीजें नहीं. ये during the event है. During the event, yes. Okay. Event के अभी जब हम प्रैक्टिस करते तभी ऑफ कोर्स अभी 4 घंटे का राइड किया. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट द एंड ऑफ 4 hours. तो उसमें 1-1 घंटे में लेना पड़ता है. बट दैट्स इजी. वो तो डेट्स लिया, केला लिया, वो मैनेजेबल होता है. 15 घंटे के लिए ये सब करता है मैनेजेबल नहीं होता है. बट देन यू हैव टू फिगर आउट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू ईच ऑफ दीज थिंग्स. कैसे लास्ट करता है, हाउ आर यू एट द एंड ऑफ द राइड. तुम थके मरे पड़े हो, यू स्टिल स्ट्रॉन्ग टू गो एंड रन. तो वो सब बहुत मैटर करता है. तब उसमें न्यूट्रिशन आता है. फिगरिंग आउट व्हाट योर बॉडी नीड्स, हाउ यू फीड इट to make sure you're standing.
तो वो फर्क गिरता है। ट्रेनिंग आप जो बोल रहे थे ना कि 6 महीने पहले चालू करना पड़ता है, तो 6 महीने नहीं, बट अगर आपको कुछ सप्लीमेंट लेना है लाइक कार्बोहाइड्रेट वाटर या जेल्स, तो उसका बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए उसका आदत होना चाहिए. सो आपको वो ट्रेनिंग राइड्स में एटलीस्ट 60 to 90 डेज पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके बॉडी को यूज टू हो कि उधर से एनर्जी खींचना है. कैसे आता है, नहीं तो हाँ। क्या है, वो रिजेक्ट करेगा. यू हैव लॉट ऑफ स्टमक एक एंड ऑल. काफी लोगों को जो सडनली इवेंट में लेते हैं, दे विल हैव स्टमक एक एंड आई हैव आल्सो फेस दैट इश्यूज. बट यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी टू ईट एवरीथिंग एंड डाइजेस्ट एवरीथिंग. वो यूज वहाँ से फ्यूल कैसे लेना है, ये ट्रेन करना पड़ता है बॉडी को. होममेड इंटेक आप क्या लेते हो? और रेगुलर दाल सब चावल, घर का दाल खाना है। घर का खाना. अब मैं पिज्ज़ा खाता हूँ बहुत ज़्यादा, हफ्ते में 2 बार. नहीं, बट ये करता भी काम ऐसा है तो हाँ, तो नेक्स्ट डे जरूरी नहीं है कि अनिकेत ने बोला पिज्जा खाना चाहिए मतलब पिज्जा खाने लग जाओ. ऐसा नहीं है, मैं खाता हूँ बिकॉज आई लाइक इट. क्योंकि अभी ठीक है, नहीं खाना चाहिए, बट अभी क्या करूँ, खाना खा लेता हूँ मैं. इट्स ओके, कुछ क्राइम ठीक है. नहीं, आई कैन सी बहुत से लोग मैगी भी खाते हैं, बट उतना वो वर्कआउट भी करते हैं, स्पोर्ट्स और वो सब चीज़ें. वो मेरा फ्यूल, स्टिल आई सी देम फिट, दैट इज माई फ्यूल. बट it's not good for health. Of course, yes. I'm not promoting this for sure, but I'm feeling I'm doing it. Do not try this at home. Yeah. What do you think? What is harder, starting or continuing? आप जो ये जर्नी कर रहे हो, Yeah, so starting is hard, but continuing is harder. That's what I perceive it. But if you love it, it's not going to be hard. If you like what you're doing, if you're liking yourself, seeing yourself what you're doing, nothing is hard. But yes, taking that one step is everything. 99% is taking that one step. That 1% is maintaining it. That's what I just feel. one step and then go ahead. एक स्टेप लेके तो देखो, वो पसंद नहीं आया तो कुछ और करके देखो. You have to take different steps at different levels to see what you actually like. आपका पैशन एक दिन में सपने में नहीं आएगा कि ये मेरा पैशन है, नहीं. You get into a routine, you get into a habit, फिर वो अच्छा लगने लगता है, वो तुम्हारा पैशन है. हाँ, converted. पैशन cannot be a paper written passion for sure. कभी नहीं हो सकता ऐसे. What do you think, Sanjay? पूरा अच्छी तरह से बता दिया है इसने. So as he said, see, starting is okay. You start, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, but to continue this for years, right? बारिश है बाहर, ठंडी है, get up and go. That requires discipline. उसमें वो motivation वगैरह काम नहीं करता तभी. That time it's your commitment and your discipline only that will take you through that. तो so yes, continuing obviously बोलते हैं ना, success का भी वही है ना. It's easy to reach the top, but to be at the top, you need to be at it always. Similarly, fitness का भी वही है. मतलब starting is difficult, but everybody can start. But how long can you sustain? That is the beauty of it. And you both have converted your passion. So it's a lifestyle for us now. It's a right? lifestyle. तुम अभी फिटनेस बोलो, हमारा लाइफस्टाइल जैसा हो गया है. So it doesn't feel that difficult. अभी हमको उसका आदत लग गया, हमको चाहिए वो, जैसे खाना चाहिए होता है. हाँ, चाहिए. ये हमको चाहिए. अगर even if I go on a long vacation, I go out and run over there also. वरना ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है करके. So there is a great athlete, Eliud Kipchoge. All the runners know him for sure. He's a runner. So उसने एक बात कही थी that for a successful athlete or any successful human, you need only one vitamin. That is vitamin N. So what is vitamin N? Vitamin N is the power to say no. Yes, definitely. So when you are sleeping और सुबह जब you are lazed out कि मेरे को नहीं उठना है, तो वो खुद को no बोल के जब आदमी उठता है ना, that is actually when you perceive your goal. कि no, I have to get up. नो हर जगह अप्लाई होता है. रात को पार्टी करना नहीं, मुझे उठना दैट गट्स दैट पर्सन शुड हैव दैट. ये नो बोलने की ताकत जिसमें है ना, वही एक एंड्योरेंस एथलीट सक्सेसफुल बन सकता है और सक्सेसफुल बन सकता है. डेफिनेटली. इवन आई फील कि ये जो विटामिन एन है, ये अपने बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. Exactly. क्योंकि आपको Everywhere. यहाँ से डेफिनेटली गेट इट एवरीवेयर. To reject us, a lot of clients, सब कुछ में आता है कि For fitness, you have done very well. So have you started giving it to our society as well? I'm sure Sanjay is the one who will answer this question. Yes. Please. Definitely, because I'm the example. He is the coach. He's the runner coach. So I think he'll be able to tell you better about So it. since 2013, I've been training every year without charge runners for marathon training throughout the year. 2013 non-stop. I don't think there's a year gone.
एंड इट गिव्स मी अ डिफरेंट किक. लोग बोलते हाउ यू डू दैट. सो एक तो एक एडवांटेज है, मेरे को अकाउंटेबिलिटी आ जाता है. आई हैव टू गो इवन इफ देयर इज वन पर्सन, राइट. इफ आई एम इन Pune, if I'm and I'm healthy, I end up showing up every 3 days a week होता है हमारा ये सेशन. So that's how I've been giving fitness. और ये लोगों को बोल बोल के नहीं आता, जो आते हैं उनको करता हूँ. तो फिटनेस हो या मनी हो, जब तक तुम्हारा अंदर का कुत्ता नहीं जागता है ना, तुम नहीं करोगे. अभी मैं लोगों को, पहले एक जमाने में मैं लोगों को बोलता था आ जाओ, बट आई रियलाइज इट विल नॉट वर्क लाइक दैट. इट वर्क्स ओनली इफ यू शो अप. सी, शोइंग अप इज योर, you have to do that. उसके बाद हम संभाल लेंगे. So I've been non-stop for 13 years till now. So that is my giving. हाँ, and it's fun. So मेरे को अच्छा लगता है ये करने के लिए. So when people come and tell me that I did my first half because of you, I did my first full because of They you. give you the support medal of Tata Mumbai Marathon. टाटा इंस्पिरेशन मेडल्स कितने Inspiration बड़े मेरे medal, पास हाँ, वैसे है ना. तो वो एक अच्छा फीलिंग आता है. एंड ये परकोलेट होता है. मैंने एक को कराया ना, लॉट ऑफ देम आर ट्रेनर्स इन देयर ओन सोसाइटीज बोलो या own groups बोलो. So it's like a chain reaction. Even friends, he is my guru. I have completed my 10 kilometers marathon because of him. First, yes. So I'm the student of. So it gives a different pleasure, right? अभी तू जाके और 10 लोगों को बताएगी, कराएगी उनसे, तो it's a paid forward kind of a thing. Fit India movement. Fit India movement बोल सकते हो. So that's has been Really my giving. nice Yeah. initiative. और इसका गिविंग का बोलता हूँ, ही इज साइकिलिंग में इतना नॉलेजेबल है. मेरा साइकिल इसी से लिया है मैंने. Okay. So he's always there to help, always there to share what is good, what is not good. And you need that. Cycling is such a sport that there can be a million combinations. Yes. So for me, he has been very supportive, and I've helped other cyclists also come to him to get guidance on what to buy, how to buy. So साइकिल का पूरा नॉलेज, अगर किसी को कुछ भी आइडिया लेनी है तो आपके पास. yeah. 100%. Undoubtedly, I'll help that person day in and day out, end-to-end services. वो आपके चेहरे पे से मुझे समझ में आ गया कि जैसे ही मैंने बोला आपको खुशी एक अलग दिखने लग गई. Because Actually. I like talking about them. I like talking about the components. I like talking about the technology अभी क्या है. मैं एक्चुअली बता सकता हूँ एक को कि ये सही है कि ये सही नहीं है साइकिल. उसका यूजुअली वो जैसे चला रहा है मैं देख के बता सकता हूँ इफ इट इज़ गुड फॉर हिम और नो. बट एज ही इज़ डूइंग ट्रेनिंग, वो आई एम अ बैड टीचर. और मुझे मेरी वाइफ बोलती है ये काफ़ी सेल्फिश बंदा है, ये लेके नहीं जाता है किसी को, खुद में ही रहता है. तो वैसे नहीं है, बट वी हैव दैट गैंग और वो ट्यूनिंग होता है. सो आई विल डेफिनेटली हेल्प समवन टू स्टार्ट अ हॉबी, बट आई डोंट ट्रेन एनीवन एज सच बिकॉज वो नहीं हो पाता है मेरे से. That's okay ना, सबका अपना अपना एक. Yes, but किसी का if they want to buy something and they want guidance कि क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, their price budget, their requirements, I will talk to them for hours together on the phone. And we have spoken so much. Right. I will force also them कि नहीं ये सही है, यही लेना चाहिए. I forced him to buy carbon wheels. इससे बात करने को डर लगता है. इसका सब टिकट साइज. It's Because good he for was you, going it's good for the yes. cycle. Yes. It's good for your ride also. But cycling is an expensive, it can get as expensive as you want it to Yeah, be. it is limitless. Right. So they ask me, why do you work, how do you manage, like cycling के बाद तुम सोते क्यों नहीं हो घर जाके आराम से? मैं बोला साइकिल चलाना है ना तो मेरे को काम भी करना पड़ेगा. नहीं तो साइकिल नहीं चलेगा. That's जैसे अपने को न्यूट्रिशन चाहिए है, वैसे साइकिल को भी कंटिन्यू उसको भी मेंटेन करना रहता है. राइट. सो फ्रेंड्स, अगर आपको साइकिल से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज चाहिए तो अनिकेत, डॉक्टर अनिकेत, उनका क्लिनिक यहीं पे हाउस ऑफ ट्रूथ, बानेर, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट. आप मिलिए उनसे जाकर. अगर आपको मैराथन, ट्रैक या आयरनमैन बनना है तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र संजय राव, उनसे मिलिए. अनिकेत, संजय, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे ऑडियंस को अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कुछ एडवाइस देना चाहते हो वो क्या होगा? संजय, go for it. So I'll go for it. So 2 things. एक तो first we always tell people के it's better you come off on your own rather than the doctor's prescription. नहीं तो फिर काफ़ी लोगों को क्या होता है ना, डॉक्टर बोलता है you have to start exercising, तुम्हारे 10-15 ailments आ जाते हैं, तब आ जाते हैं. बोला don't let it reach that stage, come before that. Second, I'm saying that do things with your children, because at this age अभी इतने सारे distractions है, there's mobile. So unless you are a role model, your children will not follow you. So start with treks, and everything. See, the best things in the world are free.
फ्री का हवा मिलता है आपको, फ्री हमको तो पानी का भी नसीब है, बट गोइंग ऑन ट्रैक्स, टेकिंग देम, टीचिंग देम अबाउट फिटनेस, ये आगे जाके बहुत काम आएगा उनको. So unless you do that, your children are not going to follow that. So make sure that you guide them, make sure you do that. And अपने लिए भी, and for professionals I would say, anybody, not even a professional, focus on sleep. Sleep is the most important thing in recovery. Even if you're not doing anything, sleep is most important. Reduce stress, eat well मतलब eat good, not junk, and exercise a bit. हम लोग जो कर रहे हैं वो करने की जरूरत भी नहीं है. जस्ट दिन का 1 घंटा मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू, राइट. दिन का 1 घंटा करोगे तो भी ठीक है, बट ये सब पैरामीटर्स अगर फॉलो करेगा तो you'll have a healthy life. That's it. और अगर कुछ गाइडेंस आपको चाहिए तो संजय हमारे है ही, ऑलवेज देयर. और मुझे ये भी पता है मॉर्निंग में आप लोग का जो ट्रेनिंग होता है वो अर्ली मॉर्निंग यूनिवर्सिटी सर्कल में. सो मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो 15 लोकेशन जाता है, 15 व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब देर आर 15 into 300 पकड़ सकती है उतना. सो आई कंडक्ट फिजिकली इन पुणे यूनिवर्सिटी ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, राइट. विदाउट उधर रहता ही है हमारा ट्रेनिंग, बट देर आर और कोई एरिया रहेगा तो देर आर 15 सच लोकेशंस. आई कैन हेल्प पीपल इन दैट, किधर जाके स्टार्ट करना है, क्या करना है. राइट, गुड. एंड हाउ So yeah, so my advice will be कि take a step today. Probably you will be unsuccessful, but step low and invest in your health. I'm sure you're working day in and day out, दिन रात काम कर रहे हो, बहुत पैसा बना रहे हो, but वो पैसा उड़ाने के लिए healthy रहना चाहिए आगे जाके. So invest in health as good as your wealth. And I think you'll be fine. And you can start on any activity you like, any sport. अब अगर बचपन में कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे तो why not go back to that sport? शायद आपको वो मज़ा आ जाए. You start liking it and you make it a habit. So habit होना बहुत ज़रूरी है of anything. Walking करो, running करो, cycling करो, play any sport, go out with your kids as he says. People who don't have kids, go out with your partners. People who are single, there are a lot of run clubs outside. Okay, there are a lot of options. But take that step, get up early. Start. That start is very important. totally agree with you, Aniket. Thank you so much, Aniket. Thank you. Sanjay, Thank you so much. Thanks for having us here. Yes. And what information you have given us today, it will really helpful to our friends, and you are always there for them. Definitely. anytime. Definitely. Thank you so Thank much. you. Thanks. Most Kiran. welcome. दोस्तों, अगर आपकी भी कोई फिटनेस जर्नी है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पॉडकास्ट.